السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں. نور العین نے صفائی ستھرائی مکمل کر کے پورے گھر پہ نظریں دوڑائیں. 2 کمرے، ان کے آگے برآمدے کے باہر چھوٹا سا صحن، پکا صحن کے ایک کونے میں بنا واش روم اور اس کے ساتھ اوپر جاتی سیڑھیاں. چھوٹا سا یہ گھر شیشے کی طرح چمک رہا تھا. صحن کی اینٹیں ہر روز گیلے کپڑے کا پونچا لگنے سے اتنی صاف اور سرخ ہو گئی تھیں جیسے ان پر سرخ رنگ کی پالش کی گئی ہو. ڈھونڈنے سے بھی ان پر مٹی نہیں ملتی تھی. صحن کے دوسرے کونے میں شہتوت کا ایک بڑا سا درخت تھا جس کا سایہ اس چھوٹے سے صحن کو گرمیوں میں دھوپ کی تمازت سے بچاتا. صفائی ستھرائی سے مطمئن ہو کر اس نے منہ ہاتھ دھویا اور کنگھی کر کے بالوں کو سمیٹا. اماں روٹین کے مطابق اس کی دونوں چھوٹی بہنوں کو اسکول چھوڑنے گئی ہوئی تھیں. وہ ہر روز واپسی پر سبزی اور دیگر ضروری چیزیں خریدتی تھیں. اسے تقریباً 9 بجے تک گھر واپس آتی تھیں. ابا بھی نوکری پہ جا چکے تھے. وہ ایک سرکاری محکمے میں کلرک تھے. مہنگائی کے اس دور میں ان کی قلیل تنخواہ ان 5 نفوس کی ضروریات کو پورا کرنے سے قاصر تھی، لیکن اماں کی دور اندیشی اور محنت نے ان کا بھرم رکھا ہوا تھا. اماں اپنے فارغ وقت میں لیڈیز کپڑوں کی سلائی کیا کرتی تھیں اور آج کل خواتین جس طرح کپڑے بنوانے کے خبط میں مبتلا تھیں ان کو اس کام سے اچھی خاصی آمدنی ہو جاتی تھی اور وہ اپنی اس آمدنی میں سے خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ پس انداز کرتی رہتی تھیں. اب تو نور بھی اس کام میں ان کا ہاتھ بٹانے لگی تھی. یوں ان سب کی محنت سے گھر کی گاڑی رواں دواں تھی، مگر ابا میاں اس غلط فہمی میں تھے کہ اس گھر کو چلانے اور اخراجات پورے کرنے میں ان کی اکیلی جان گھلتی جاتی ہے. ان کو اس بات کا احساس دلانے والی ہستی پھپھو تھی جن کے خیال میں ان کے بھائی اپنے بال بچوں کو پال کر دنیا سے کوئی انوکھا کام کر رہے تھے. ابا میاں کو اماں کی خاموش محنت اور خدمت نظر تو کیا آتی، کبھی محسوس تک نہیں ہوئی تھی. ابا میاں اور اماں کے تعلقات عجیب سی سرد مہری لیے ہوئے تھے، یوں جیسے 2 اجنبی ایک ساتھ رہنے پہ مجبور کر دیے گئے ہوں. بلکہ ابا میاں تو ان تینوں بہنوں کے ساتھ بھی بس ایسے ہی تعلقات رکھتے تھے جیسے وہ ان کی سگی بیٹیاں نہ ہوں. شاید نہیں، یقیناً ابا میاں کو یہ تینوں اس سے بری لگتی تھی کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا. اگر بیٹیوں کی جگہ ان کے 3 بیٹے ہوتے تو پھر ابا میاں ایسے سرد مہر نہ ہوتے. یہ نور العین کا خیال تھا جو 100% درست تھا. البتہ اماں ان تینوں کے مقدور بھر لاڈ اٹھاتی تھیں، لیکن یہ لاڈ ایسے تھے جو ان کی تربیت پر کبھی اثر انداز نہ ہوئے. وہ ان کی بہت ضروریات اپنی سلائی کی اجرت سے پوری کرتی تھیں. نور سمیت تینوں بہنیں پڑھنے میں بہت ہوشیار تھیں، لیکن ان کی یہ خوبی بھی ابا میاں کو کبھی نظر نہیں آئی تھی. نور نے میٹرک کر لیا تو اسے کالج میں داخلے کی اجازت نہ ملی کہ ابا میاں کو ہرگز پسند نہیں تھا. ان کی بیٹیاں کالج یونیورسٹی کے نام پر آوارہ گردیاں کرتی پھریں. پھپھو نے بھی ابا میاں کے خیالات سے ہمیشہ اتفاق کیا تھا. بھلا وہ یہ کیسے برداشت کر سکتی تھی کہ ان کے بھائی کی بیوی اور بچیاں اپنی مرضی سے زندگی گزار سکیں. مگر نور العین نے ہمت نہ ہاری اور پرائیویٹ ایف اے کی تیاری کرنے لگی. ابا میاں اور پھپھو کو تب خبر ہوئی جب نور نے بغیر کسی مدد کے خود ہی فرسٹ ڈویژن میں ایف اے کلیئر کر لیا. توبہ اللہ، کیا زمانہ آ گیا ہے. گھر بیٹھے باپ کو بھی بیٹیوں کے کرتوتوں کا علم ہی نہیں ہے. اور دیکھو تو ماں کیسی گھنی ویستی ہے، اوپر ہی اوپر جانے کہاں تک یہ معاملات خود سے دیکھ رہی ہے. ارے میرے معصوم بھائی، ان کو کنٹرول کر لے ورنہ کل کو یہ اکٹھی ہو کر تیرے سر میں خاک ڈلوائیں گی. پھپھو کو خبر ہوئی تو آنکھیں واویلا کرنے لگی. اللہ نہ کرے آپا، کیسی باتیں کر رہی ہیں. اماں نے دہل کے سینے پہ ہاتھ رکھ لیا. تم جاؤ یہاں سے، کتنی بار کہا ہے ہم بات کر رہے ہو تو بیچ میں ٹانگ مت اڑایا کرو. جاؤ ہمارے لیے چائے بنا کر لاؤ. ابا میاں نے ہمیشہ کی طرح اماں کی ذات کو 2 کوڑی کا کر دیا. ابا میاں کے خوف کے باوجود نور اب گھر پہ ہی بی اے کی تیاری کر رہی تھی تاکہ بھلے پرائیویٹ ہی صحیح مگر اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکے.
पढ़ना और अपने पैरों पे खड़े होना उसका देरीना ख्वाब था, जिसे वो जल्द अज जल्द पूरा करना चाहती थी। उस रोज़ भी नूर ने सहन में धूप आने पर अच्छे से सहन की सफाई की और दरमियान में ही चारपाई बिछाकर उस पर मशीन रखी। वो सूटों के ट्राउज़र सीने लगी थी, जिनकी कमीज़ें आज अम्मा ने मुकम्मल करनी थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई तो सिलाई मशीन रोककर दरवाजे की तरफ बढ़ी। वो बगैर पूछे ही दरवाज़ा खोल चुकी थी, क्योंकि अम्मा की दस्तक को वो खूब पहचानती थी। अम्मा ये ले पानी। अम्मा जब चारपाई पे आके बैठी तो वो पानी का गिलास थामे उनके पास थी। नूर, तुम्हारा कितना काम रह गया है? आज 2 सूट मुकम्मल करके देने हैं मुझे। बस थोड़ी देर बाद अम्मा, मेरा काम ख़त्म हो जाएगा, फिर आप अपनी कमीज़ें सी लेना। और फिर नूर ने अपने हिस्से के ट्राउज़र सीने के बाद मशीन अम्मा को दे दी और ख़ुद जल्दी जल्दी सब्ज़ी काट के हांडी बनाने लगी कि फिर उसे पढ़ाई भी करना थी। नूर सब्ज़ी वाली टोकरी और छुरी लेकर चारपाई पे जा बैठी और जल्दी जल्दी सब काटने लगी। और फिर अब्बा मियाँ की सर्द मोहरी के बावजूद नूरुल ऐन को वो बहुत अजीज़ थे। वो उनके हर काम अपने हाथ से करती थी। उसकी पूरी कोशिश होती कि वो या उसकी बहनें कोई ऐसा काम ना करें जिससे अब्बा मियाँ को तकलीफ़ हो या उन्हें नागवार गुजरे। अब्बा मियाँ, चाय ले लें। उसने चाय का कप उनके सामने किया तो उन्होंने पकड़ लिया। वो फिर भी वहीं खड़ी रही। अब्बा मियाँ, आपको कोई परेशानी है? क्या मतलब? उन्होंने कदरे गुस्से से कहा। अब्बा मियाँ, आप इतने खामोश क्यों रहते हैं? आप भी दूसरों की तरह हंसा बोला करें ना, कभी हमारे साथ भी बैठे। नूर ने उनके लहजे से खाइफ होकर जल्दी से बात मुकम्मल की कि मुबादा अब्बा मियाँ धाड़ के उसे चुप ही ना करवा दें। अब इस उम्र में मैं हंसी ठठोल करते हुए अच्छा लगूंगा? सारा दिन थक मर के आऊं और आकर तुम लोगों की फजूल बातें सुनकर सर के दर्द में मजीद इजाफा कर लूं। तुम्हें सारा दिन कोई काम नहीं होता जो इस तरह की बातें सोचती रहती हो? जाओ यहाँ से, अपना काम करो। आराम से चाय पीना भी हराम है इस घर में। उन्होंने रुखाई से कहकर उसे बाहर का रास्ता दिखाया। नूर बहुत भारी दिल के साथ चुपचाप कमरे से निकल गई। अम्मा, अब्बा मियाँ ऐसे क्यों है? अब्बा मियाँ नाश्ता करके दफ्तर जा चुके थे। अब अम्मा अपने और उन तीनों के लिए नाश्ता बना रही थी जब नूर ने उनसे ये सवाल किया। क्या ऐसे हैं? अम्मा ने मसरूफ़ अंदाज में कह के पराठे के लिए बेली हुई रोटी तवे पे डाली। वो जल्दी जल्दी नाश्ता बना रही थी ताकि ये चारों आराम से नाश्ता कर लें, फिर वो दोनों छोटियों को वक्त पे स्कूल छोड़ आए। वो हमसे बातचीत क्यों नहीं करते? कभी हमें प्यार नहीं करते, कभी हमारे लिए कुछ खरीद कर नहीं लाते, और तो और आपके साथ भी तो हमेशा नाराज़ नाराज़ से रहते हैं। अम्मा, मेरा दिल चाहता है कि हमारे अब्बा मियाँ भी सबा के अब्बू जैसे हो जाएं। सच कितना ख्याल रखते हैं मैं उन सब का। नूर के लहजे में हसरत थी। उसके लहजे में ऐसा कुछ था जिसे महसूस करके अम्मा चौंक उठी। ये कैसी हसरतें पिनपने लगी हैं मेरी बेटियों के अंदर, वो सोच के रह गई। उन्हें तवे पर डाली हुई रोटी भी भूल गई। एकदम रोटी के जलने की बू आई तो उन्होंने फौरन रोटी पलटी और उस पर घी लगाने लगी। बेटा, हर किसी का अपना अपना अलग मिजाज होता है। तुम्हारे अब्बा मियाँ भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने बहुत सोचकर नूर की बात का जवाब तो दिया, मगर उस समय उन्हें अपनी ही आवाज़ अजनबी सी लगी। पता नहीं ये कैसा प्यार है जो ना तो हमें नजर आता है और ना ही कभी हमें महसूस होता है। नूर ठंडी सांस भर के नाश्ते की तरफ मुतवज्जो हो गई और अम्मा सोचती नज़रों से उसे तकती रह गई। अम्मा, हमें भी नाश्ता दे दें। नूर की छोटी बहनों की आवाज़ सुनकर अम्मा ने ठंडी सांस भरी और नाश्ते की प्लेटें उनकी तरफ बढ़ा दी। नूर अब इत्मीनान से नाश्ता कर रही थी, मगर उसकी बात ने अम्मा के अंदर बेकली सी भरती थी। बाजी, इस लफ्ज़ का मतलब बताएं। उस रोज़ सबसे छोटी मासूमा ने किताब नूर के सामने की। नूर, हीरा और मासूमा बरामदे में बिछी चारपाई पे बैठ के पढ़ाई कर रही थी और अम्मा नीचे चटाई पे बैठकर कमीज़ की तुरपाई कर रही थी। नूर मासूमा को मतलब समझाने के बाद उठी। अम्मा, मैं पहले चाय का पानी रख दूं, अब्बा मियाँ आते होंगे। वो बरामदे से बाहर आई। इतने में बाहर का दरवाज़ा ज़ोर से धड़धड़ाया। यूँ लगा जैसे आने वाले के पीछे दुनिया जहान की पुलिस लगी हो। कौन है भाई, क्या हो गया? सबर सबर, आ रही हूँ। नूर ने कदरे ऊंची आवाज़ में दूर से ही दरियाफ्त किया और किचन में जाने की बजाय दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ गई।
दरवाज़ा खोलोगी तो बताऊंगी ना कि कौन है, तुम्हारी तरह चीखने से तो रही। दरवाज़ा खोलते ही उसकी फूफो बोलते हुए अंदर दाखिल हुई। वो तो जैसे बुद्धि बन गई कि फूफो की शान में गुस्ताखी हो गई, मतलब अब्बा मियाँ से डांट पड़ेगी। अब हटो सामने से, क्या ऊँट की ऊँट रास्ता रोक के खड़ी हो गई हो। फूफो ने उसे बाजू से पकड़कर साइड पे धकेला और उसे दुआ सलाम का मौका दिए बगैर आगे बढ़ गई। वो जी भर के खौफज़दा हुई। वो सीधी बरामदे में पहुंची और दुआ सलाम की बजाय अम्मा पे एतराज़ात की भरमार कर दी। ये तुम क्या हर वक्त मशीन पे झुकी रहती हो ना, तुम क्या साबित करना चाहती हो दुनिया पे कि मेरा भाई नकम्मा और नखट्टू है जो तुम माँ बेटियों की ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकता और तुम सलाइयाँ कर करके अपना खर्चा चलाती हो। फूफो का लहजा बहुत कड़वा था। उनका बस नहीं चलता था, वो इन माँ बेटियों के सांस लेने पे भी पाबंदी लगवा देती। आपा, मैं ऐसा कुछ नहीं समझती, बस अपना फारिग वक्त इधर उधर ज़ाया करने की बजाय उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करती हूँ। ऐसा करके ना तो मैं किसी पर एहसान करती हूँ और ना ही किसी को कुछ जिताना मकसूद है। अम्मा ने बड़े तरीके से समझाया था। न जाने उनमें इतना ज़ब्त कहाँ से आ जाता था कि वो फूफो की कड़वी कसीली बातों पर भड़कने की बजाय ठंडा ठार जवाब देकर खामोश हो जाती थी, जिसके नतीजे में कभी तो फूफो नखुबत से सर हिलाकर खामोश हो जाती और कभी भड़क उठती, जैसे कि अभी हुआ था। ये वक्त ज़ाया करने वाली बात तुमने मुझे लगाई है। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं घर के काम नहीं करती? मेरे घर में कौन से नौकरों की फौज है बीबी? मैं भी अपने घर का काम खुद ही करती हूँ, मगर हमें ना तुम्हारी तरह काम का वावेला करना नहीं आता। फूफो ने अम्मा की सीधी सी बात को घुमा फिरा कर अपने मतलब के मायने निकाल लिए थे। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अम्मा अपना काम समेट कर उठ खड़ी हुई। मैं आपके लिए चाय लाती हूँ, वो ये कहकर जान छुड़ाती किचन की तरफ बढ़ गई। रहने दो, ये चापलूसियाँ तुम बीबी सब जानती हूँ। मुंह पर बड़ी मीठी बनती हो और पीठ पीछे बदुआएं देती हो। उन्होंने एक और तीर फेंका। मेरी और आपकी फितरत में यही तो फ़र्क है आपा कि मैं अपने साथ जुल्म करने वाले को बदुआ नहीं दे सकती और आप हर किसी को बदुआ देने पर तैयार रहती हैं। अम्मा ने दिल ही दिल में फूफो को जवाब दिया और खामोशी से किचन में गायब हो गई। जानती थी कि अगर चाय पानी ना पूछा तो अब्बा मियाँ के आते ही उनको शिकायतनामा खुल जाता और खामखा घर का माहौल ख़राब होता। जबकि उन तीनों बहनों के चेहरों पर बेचैनी के तासुरात बहुत नुमायां थे। सिर्फ चाय पेट रखाने का मत सोच लेना, रात का खाना खाकर जाऊंगी मैं आज। फूफो ने चाय बनाती अम्मा को दूर से बुलंद आवाज़ से अपने इरादे से आगाह किया और उसकी बहनों को परे धकेल के चारपाई पे खुली होके लेट गई। अम्मा, फूफो अब्बा मियाँ के पास बैठकर रो रही है। नूर जो उन्हें खाने के लिए बुलाने गई थी उल्टे कदमों वापस आई। दोनों बहन भाई काफ़ी देर से कमरे में बंद गुफ्तो शनीद कर रहे थे। यकीनन अपनी कोई बात मनवाना होगी, हमेशा इसी तरह तो होता है, उन्होंने दिल ही दिल में सोचा। छोड़ो तुम दस्तरखान लगाओ, मैं देखती हूँ। अम्मा ने नूर को हदायत दी और खुद अंदर की जानिब बढ़ गई। खाना खा लें, ठंडा हो जाएगा, अम्मा ने दरवाजे पे खड़े होकर बगैर किसी को मुखातिब किए कहा और पलट आई। मुड़कर देखती तो मालूम होता कि फूफो ने उन्हें कैसी खा जाने वाली नज़रों से घूरा था। फिर फूफो खाना खाकर वापस जाने की तैयारी करने लगी। जाते वक्त वो बहुत खुश थी। उनके चेहरे पर थोड़ी देर पहले वाले रोने धोने का शायबा तक नहीं था। लगता है आज फिर कोई अपनी बात मनवा कर गई है, अम्मा ने किचन की खिड़की से उन्हें बाहर निकलते देखकर सोचा और फिर ठंडी सांस भर के बर्तन समेटने में मसरूफ़ हो गई। तुम जल्दी से फारिग होकर मेरे कमरे में आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करना है, अब्बा मियाँ ने अम्मा को रौनक ज़दा लहजे में पुकारा, जैसे कि वो उनकी ज़रख़रीद गुलाम हो। हमेशा फूफो के जाने के बाद किसी बात को बुनियाद बनाकर अम्मा की क्लास लगती थी। आज भी जब अब्बा मियाँ ने अम्मा को जल्दी फारिग होकर कमरे में आने को कहा तो तीनों बहनों ने बैक वक्त अम्मा के चेहरे की तरफ देखा, मगर आज उनके चेहरे पे गुस्से की बजाय किसी सोच के साए लहरा रहे थे, जिन्हें देखकर अम्मा का दिल गोते खाने लगा था कि आज अगर डांटना नहीं तो फिर क्या बात करनी है। जन्नत खातून, अब्बा मियाँ शुरू हो गए थे, आपा ने अपने सबसे बड़े बेटे हामिद के लिए नूर का हाथ मांगा है। अब्बा मियाँ ने बगैर किसी तमहीद के ही
اماں کے سر پہ گویا بم پھوڑ دیا تھا۔ وہ پھٹی ہوئی بے یقین آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگی، جیسے انہیں اپنے شوہر کی بات سمجھنے میں غلطی ہوئی ہو۔ ان کا دل کسی انہونی کے احساس سے کانپنے لگا۔ وہ اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے کے لیے جلدی سے چارپائی پر ٹک گئیں